Assalamu alaikum everyone. Hi, how are you? I'm Mubila Kashif from PAC. I'm teaching here subjects of cost and management accounting and financial management. I have 25 years of experience, and my affiliation with PAC is for last 17 years. And during this affiliation, I have taught all subjects of cost and management accounting and F9 from financial management. Alhamdulillah, 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 we have secured three distinctions, nationwide distinctions in last 4 years. Two distinctions were from performance management, that was previously F5, and one is in financial management in 2020. Our today's session is on tips to pass financial management easily. Let's start our session. I hope the screen is visible to you and audio is clear, I hope. So let's start our session now. Tips to pass financial management. Before starting the session, I will discuss some reasons why students fail in exam. The most typical reason is lack of knowledge. Our current syllabus and current exam criteria or the format of exam is that we have to cover full syllabus area, otherwise we will not be able to attempt all the questions. अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस वक्त 60% प्रोपोर्शन जो है वो OTQs की फॉर्म में टेस्ट होना है, शॉर्ट क्वेश्चंस, and the short questions OTQs cover the entire syllabus of the book of F9. So we have to cover the full syllabus if we need a pass. And the second main reason of not clearing FM or losing the marks is lack of knowledge of exam techniques. Students enter in the exam without proper exam techniques. So we will discuss these issues detail in this session. So let's start. These are the topics of concern or points of concern. स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि किस क्वेश्चन को हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, शुड वी गो फॉर द CRs और शुड वी गो फॉर द OTQs फर्स्ट. तो इसमें विच क्वेश्चन टू स्टार्ट फ्रॉम हम बात करेंगे इस पे. एंड अदर मेन इशू इज अगेन वही जो मैंने कहा था कि एग्जाम टेक्निक्स नहीं सही तरह से पता होती, तो रीडिंग द रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू इफेक्टिवली रीड अ क्वेश्चन, एंड व्हाट इफ यू डोंट रीड द रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली. Time management is always a big issue. स्टूडेंट्स के बाद का ऐसा होता है कि फेलियर की वजह या कह लीजिए कि अच्छे स्कोर के साथ पास ना करने की वजह ये होती है कि इजी मार्क्स जो अवेलेबल होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स. Identifying where easy marks are available and how can we utilize our time to earn easy marks. Prepare for narrative too. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में अक्सर का स्टूडेंट्स का फोकस ज़्यादा होता है कैलकुलेशन के ऊपर, और वो प्रैक्टिस भी जब एग्जाम की तैयारी के लिए करते हैं तो ज़्यादा फोकस प्रिपरेशन उस पर रखते हैं, कैलकुलेशन पे. हालांकि नरेटिव भी, एज ऑल ऑफ यू नो, 50% जो है वो टेस्ट होना है नरेटिव, डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, evaluation, describe, structuring your answer, how to structure your narrative answers and how to structure your calculation based answers. Reasons of not performing well, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, अब एक लिस्ट के फॉर्म में भी हम इसको देखेंगे. What to do before the exam day, and then we will conclude our today's session. So the first point to discuss is which question to start from. So which question to start from? This is a matter of personal preference. आपने ये देखना है कि आपने जो तैयारी की हुई है एग्जाम की, आपकी किसके ऊपर ज्यादा अच्छी ग्रिप है.
क्या आप OTQs को पहले अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल है, आपने उसकी बहुत प्रैक्टिस की हुई है और आप कॉन्फिडेंट है कि आप बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन जो टैकल कर लेंगे, आप उसके साथ स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जरूर CR ही स्टार्ट करना है या जरूर OTQs से ही स्टार्ट करें। आपको पता है नेविगेशनल प्लान दिया हुआ होगा वहाँ पे, आपने उसके साथ अपनी मर्जी का क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके तो स्टार्ट करना है। तो यू कैन स्टार्ट विद CRs if you have prepared well that area. तो इट इज अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस, आप जिस चीज के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आपने उससे अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करना है। बस इस बात का ध्यान रखो कि जिस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करो उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है आपने और उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर देना, ठीक है। रीडिंग द रिक्वायरमेंट, द मेन इशू, यहीं पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा लैक करते हैं। क्लासेस में भी जब हम क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं, प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और बहुत सारी जो रॉन्ग कैलकुलेशंस इस बेस पे हो जाते हैं कि डाटा की इंटरप्रिटेशन ही प्रॉपर्ली नहीं की हुई या रिक्वायरमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी हुई। तो OTQ केस क्वेश्चन या OTQs जब सॉल्व करने हैं तो उस वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड if it is a narrative OT, read all the distractors carefully. Ensure you follow the instructions in the question on how to answer the question, as different question types will require different interactions. तो आपको पता है कि OTQs की एक पूरी वैरायटी टेस्ट होनी है, तो बहुत ध्यान से जहाँ पे डिजिट एंट्री है उस पर ध्यान रखिएगा कि आपको डेसिमल के अलावा और कुछ अलाउ नहीं है एंटर करने के लिए, और जितने भी डिस्ट्रक्टर्स हैं उनको साइड पे करते जाएं। OTQ में अगर फॉर एग्जांपल एक MCQ आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि क्या दुरुस्त आंसर हो सकता है, तो हम जैसे कि ऑड वन आउट की टेक्निक लगाते हैं कि जो पॉसिबल आंसर्स नहीं है कम से कम उसको साइड पे कर दें। तो उनको साइड पे करके जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनकी लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी, तो फिर अगर हमने कोई बाय चांस भी एक आंसर सेलेक्ट करना है तो हमारे लिए वो निस्बतन आसान हो जाएगा, हमारा चांस ऑफ करेक्ट आंसर या राइट आंसर बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पूरा OTQ केस या OTQ केस या OTQ इसलिए कि बहुत ब्रीफ सी स्टेटमेंट दी हुई होती है और उसी से हमने पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना होता है। और बाज़ औक़ात जैसे कि अब एक क्वेश्चन है जिसमें आपने एडवांस्ड एनुटीज के साथ कैलकुलेशन करनी है उसके कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स देखे कि उसको नॉर्मल एनुटी के साथ सॉल्व कर देते हैं। अब एग्जामिनर जैसे हम लोग रीड द माइंड ऑफ द मार्केट की तरफ जाते हैं, उसी तरह से एग्जामिनर या जो पेपर सेटर्स हैं या जो एग्जामिनिंग टीम है उनको अच्छी तरह से पता स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हैं, कहाँ कॉन्सेप्ट की गलती करेंगे, कहाँ प्रिंसिपल की गलती करेंगे। तो उन्होंने डिस्ट्रैक्टर भी एंटर किए हुए होते हैं काफी सारे, ताकि इस चीज को जज कर सकें कि आपको कितनी अच्छी डेप्थ के साथ अपने प्रिपरेशन की हुई इस टॉपिक की। तो हमेशा ध्यान से पढ़े क्वेश्चन, ये आपको पास करवा सकता है। पैनिक नहीं होना एग्जाम में। अच्छा जी, अब उसके बाद है CR की रिक्वायरमेंट्स। इसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है क्योंकि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पता है कि आएगा एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन होंगे तो 40 मार्क्स जो है यहाँ से आपने स्कोर करना है। Remember, the requirement should always be the first thing that you look at in a question. अब आपने क्वेश्चन में बेसिकली देखना क्या क्या कुछ है, कंटेंट, किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है अगर उसमें, तो क्या वो रिसीवेबल मैनेजमेंट टेस्ट कर रहा है। अब फौरन से पहले मेरे माइंड ने क्या करना है कि उसको टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देना। रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में अगर पूछ सकते हो तो क्या क्या कुछ पूछ सकते हैं फिर वो। तो पहले तो टॉपिक आइडेंटिफाई करो ना कि क्या टेस्ट हो रहा है, व्हाट द टॉपिक इज बीइंग टेस्टेड इन द क्वेश्चन। उसके बाद देखिए ज्यादा फोकस करें इंस्ट्रक्शनल वर्ब के ऊपर, जैसे कि अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट है उसकी, तो कैलकुलेट करना है, प्रोड्यूस करना है, डिराइव करना है, अप्लाई करना है, क्या करना है। और नरेटिव में क्या टेस्ट हो सकता है, डिस्क्राइब, इंटरप्रेट, आउटलाइन, कंपेयर, आइडेंटिफाई, डिस्कस, एक्सप्लेन, इवेल्युएट। हर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब जैसे जब अगर एग्जामिनर पूछते हैं कि डिस्कस करें, वो सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग या हार्ड कैपिटल राशनिंग की रीजंस आपसे फॉर एग्जांपल कह रहे कि डिस्कस कीजिए। अब यहाँ पे मैंने उसके प्रो एंड कॉन्स बताने। जब भी डिस्कशन किसी चीज पे एग्जामिनर डिमांड करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके प्लस पॉइंट्स भी पूछ रहे और नेगेटिव पॉइंट्स भी पूछ रहे। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल वो ये पूछ रहे कि
रीजंस ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कैपिलरी राशनिंग, तो फिर आपने रीजंस पे ही सिर्फ बात करनी। अब आपको कैपिलरी राशनिंग को डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा। एग्जामिनर इज आस्किंग जस्ट टू डिस्कस द रीजंस ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कैपिलरी राशनिंग। 4 to 5 मार्क्स के आमतौर पर डिस्कशन टेस्ट हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं तो फिर मुझे एक टॉपिक जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर। अब जैसे कि अगर वो पूछता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में पूछ लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करें कि वो क्या है, कौन कौन सी है, तो फिर मुझे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती क्या है पहले इस पे बात करनी है। फिर मुझे उसकी पॉलिसीज पे को वन बाय वन डिस्कस करना है कि मॉडरेट और एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच, कौन कौन सी अप्रोच हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में फिर हम डिटेल में चले जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे कि आमतौर पर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए वो कहता है आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो फिर मुझे आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये कि एक लिस्ट की फॉर्म में चीजों को लेकर आना। तो मैंने इक्विटी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे भी बात करनी है, मैंने डेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे भी बात करनी है, और अगर साथ वो इवेल्युएशन का भी पूछ रहे तो मैंने हर सोर्स ऑफ फाइनेंस को कंपनी के सिनेरियो में, क्वेश्चन के बैकग्राउंड में इवेल्युएट करना है कि कंपनी की गियरिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमेशा जो इंस्ट्रक्शनल वर्ब है कि क्वेश्चन में उस टॉपिक के साथ करना क्या है, आपको वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आप अगर एसीसी की वेबसाइट विजिट करें तो उसमें जहाँ तक मुझे याद है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सीआर के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए एक आर्टिकल दिया हुआ एग्जामिनर ने, उसमें डिटेल्स उसने बताया हुआ है कि कौन कौन से जो वर्ब्स हैं उनको किस तरह से आपने आंसर करना। तो एक बहुत ये हेल्पफुल किस्म का वो आर्टिकल है, सीआर क्वेश्चंस को आपने कैसे अप्रोच करना है उसके ऊपर, जिसमें से इन इंस्ट्रक्शनल वर्ब्स पे डिटेल्स जो एग्जामिनिंग टीम उन्होंने बात की। क्योंकि जाहिर बात है बेटे टाइम हमारे पास थोड़ा होगा और उसमें हम सब कुछ तो एग्जामिनर को नहीं बता सकते। अगर 5 मिनट की ये डिस्कशन है या 8 मिनट्स की डिस्कशन है, उसमें हमने टू द पॉइंट रह के बात करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इफ यू डोंट रीड द रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन प्रॉपरली? If you don't read and understand the instruction carefully, then you will find that you are not actually answering the question. If you are not answering the question, then you are not earning marks. आपने उस चीज का आंसर ही नहीं किया जो एग्जामिनर पूछे, तो फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिले, चाहे आप जितने बड़ी स्टोरीज जो है वो लिख के आ जाए। You will produce unnecessary material, जो चीज नहीं पूछी हुई आप उसका आंसर करते जाओगे, जहां पे डेफिनेशन नहीं पूछी वहां पे डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अपना टाइम सेव कीजिए, सिर्फ टू द पॉइंट हमने रहना है हर जगह। Wrong interpretation of data given may lead to loss of easy marks. अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 365 डेज, आपने 360 डेज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें कहा हुआ है कि आपने एज्यूम करना है कि साल में 360 डेज है इन अ ईयर, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 365 डेज के साथ, तो जाहिर बात है अगर एक इजी कैलकुलेशन भी होगी तो आपने क्योंकि डाटा प्रॉपर यूज नहीं किया, इसलिए आप इजी मार्क्स भी लूज कर सकते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इफ गिवन इन अ क्वेश्चन। और तैयारी करते वक्त इस बात को भी जहन में रखिएगा बेटे कि 50% कैलकुलेशन टेस्ट होनी है और 50% ही थियरी टेस्ट होनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। So reading the question and reading the requirement is utmost important for availing good marks in financial management or in any subject. So next, managing your time effectively. अच्छा, अब यहाँ पे किस बात का ध्यान रखते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स जो है, जब खासतौर पे हम लोग भी जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि सीआर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें पता है एक क्वेश्चन जो वो 20 मार्क्स का है, हम तैयारी में भी ज्यादा टाइम लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी पे स्पेंड कर देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कर लें, और एग्जाम में भी अगर हमने सीआर से स्टार्ट कर लिया तो हम बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर देते हैं कि इसके 20 मार्क्स। लेकिन डोंट फॉरगेट OTQs विल मेक अप 60% ऑफ योर पेपर ऑफ योर एग्जाम। अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी, तैयारी के दौरान भी आपने 60% टाइम जो है वो OTQs की प्रैक्टिस पे लगाना है और 40% टाइम जो है वो सीआर की प्रैक्टिस के ऊपर लगाना है। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ F9 तो आप उस वक्त तक तो
काफी सारे स्किल लेवल के एग्जाम्स ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो बेटे, तो आपको OTQs और CR को सॉल्व करने का तरीका तो आता ही होगा। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वर्ड पे और एक्सेल पे करते जाना, CR की प्रैक्टिस सिर्फ करते जाना और OTQs को प्रैक्टिस के दौरान इग्नोर कर देना, ये आपके लिए एग्जाम में प्रॉब्लम करे। क्योंकि जो OTQs है ना, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत ब्रीफ सी स्टेटमेंट होगी, उसी के साथ आप अपने 2 मार्क्स स्कोर कर लें। CRs के साथ तो पूरे डिटेल क्वेश्चन है, उसको हम निस्बतन आसानी से समझ जाते हैं। तो आपने अपनी तैयारी में भी इस बात का ध्यान रखना है प्रिपरेशन में कि 60% टाइम जो है OTQs की प्रिपरेशन में और 40% टाइम CRs की प्रिपरेशन में। और जब एग्जाम में आप एंटर होते हो, पेपर देने के लिए जाते हो, तब भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 60% टाइम आप अपना OTQs को सॉल्व करने पे स्पेंड करें और 40% CRQs को। Don't overspend time on OTQ. You are not sure about the answer of which. अगर एक OTQ आपको लग रहा है कि डाउट में आप पता नहीं इसका क्या आंसर होगा, तो उसके ऊपर 10 मिनट स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए, इस चीज को जज करने के लिए उसका पॉसिबल आंसर क्या होगा। क्योंकि बहरहाल OTQ सिर्फ 2 मार्क्स की वर्थ रखता है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी पोर्शन सॉल्व कर रहे हो, इस बात को जहन में रखना है कि आपको 1.8 मिनट्स पर मार्क जो है वो दिया गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो OTQs के हवाले से था। अब देखते हैं CRs। अच्छा, OTQs में स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादा इशू आता है CRQs के ऊपर। अब अगर 36 मिनट्स में हमने एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि 20 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये कि 72 मिनट्स है हमारे पास 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1.2 आवर्स। आपने वो टाइम बस उसके ऊपर उतना ही स्पेंड करना है, उससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना CRs के ऊपर। When it comes to answering the constructed response questions, be sure that you are strict with your time allocation. If you are spending too long on one part of the question, it is either because you can't do it anyway, यानी कि आपको पता ही नहीं उसका आंसर क्या होगा या कैसे मैं इसको सॉल्व करना है, इसलिए टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हैं, or you are saying too much and going beyond what the examiner expected of you. तो ज्यादा तवील आंसर भी कर दोगे, इधर उधर की स्टोरीज सुनाओगे, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो एग्जामिनिंग टीम है, इन्होंने जो पेपर्स बनाए होंगे वो बहुत बैलेंस्ड पेपर होंगे। एग्जामिनर को खुद अच्छी तरह से आइडिया है इन चीजों का कि जिस पार्ट के लिए जितना टाइम एलोकेट किया गया वो सफिशिएंट है। अगर एक स्टूडेंट ने प्रॉपर प्रिपरेशन की हुई है तो वो उसको उतने टाइम में आंसर कर लेगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने एक पार्ट है फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का, तो 1.8 के रेट से आपने उसके ऊपर कितना स्पेंड करना है, आपने उसके ऊपर 9 मिनट्स स्पेंड करने हैं। तो 9 मिनट्स भी जितना वो सॉल्व कर लिया, उसको वहीं पे छोड़ के अगला पार्ट स्टार्ट करो, क्योंकि एक पार्ट को कंप्लीट करना आपको उतने मार्क्स अवार्ड नहीं करेगा जितना कि नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करना। ये बात एग्जामिनर्स बार बार कहते आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, अगर एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जो 3 पार्ट्स का है, A, B और C, जिसमें पहले 2 पार्ट्स फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स के हैं और C पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का है। अब 8 मार्क्स के 2 पार्ट्स को सॉल्व करने पे उन्होंने 45 मिनट स्पेंड कर दिए और वो जो 4 मार्क्स का पार्ट था वो फिर छोड़ दिया या अगला क्वेश्चन मुकम्मल नहीं कर सके। इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि टाइम एलोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जाहिर बात है वो चीजें, वो एग्जामिनर्स जो है वो जो मार्कर्स हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम इश्यूज इन द स्क्रिप्ट्स। आधा घंटा वो कहते हैं कि बच्चे उस पार्ट पे लगा देते हैं, स्पेंड कर देते हैं जिसके सिर्फ 5 मार्क्स है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई की पॉइंट डिस्कस कर रहे हो आप, उस डिस्कशन में एक पॉइंट को डिस्कस करने का आमतौर पर 1 मार्क होता है, ठीक है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने बहुत ज्यादा तवील डिस्कशन में नहीं जाना, एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि बुलेट्स की फॉर्म में लिखते चले जाओ, ठीक है, एक सेंटेंस की फॉर्म में प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसको पैराग्राफ में डिस्कस करने की जरूरत है तो उसको पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्कस करें, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम एक ही पॉइंट पर स्पेंड ना करें।
आप कैलकुलेशन में टाइम कैसे सेव कर सकते हैं? ओन फिगर रूल को फॉलो करके। अब ओन फिगर रूल तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे वाकिफ होंगे। इसमें बहुत वक़्त ऐसा होता है कि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट से बना रहे हैं, कंटिन्यूअस एक चल रही है स्टेटमेंट। अब उसमें कंसेक्टिव जो है वो कैलकुलेशन जो है पहली वाली कैलकुलेशन के ऊपर अगली कैलकुलेशन बेस्ड है, डिराइव करके हमने आगे चलना है डाटा को। अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का क्वेश्चन है और सेल्स मैंने एनपीवी फाइंड करनी है प्रोजेक्ट की और एनपीवी फाइंड करके डिसीजन लेना है येस और नो। अब उसमें आपको पता है कि सेल्स से हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस का। अब सेल्स को इन्फ्लेट करने की आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे उसको इन्फ्लेट करें। अब आपको पता है कि आपकी सारी स्टेटमेंट या आपका जो आंसर है वो सेल्स की उस फिगर पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि उसी में से फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट वगैरह और टैक्स वाले के और वर्किंग कैपिटल को माइनस करके तो हमने एनपीवी फाइंड करनी होती है। अब अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्स की फिगर दुरुस्त नहीं कैलकुलेट कर पा रहे क्योंकि उसको इन्फ्लेट करना है, तो आप ओन फिगर रूल को फॉलो करके अपनी वैल्यूज अज्यूम करके क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स आप लूज़ करेंगे वो उस सेल्स की कैलकुलेशन के होंगे, लेकिन बाकी स्टेटमेंट अगर आपने दुरुस्त बनाई हुई है, एग्जामिनर आपकी उस रॉन्ग सेल्स की फिगर या एस्टिमेटेड सेल्स की फिगर के साथ ही क्वेश्चन को बाकी का सॉल्व करेगा और आपको बाकी की वर्किंग अगर आपकी ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपकी ठीक है, आपकी लॉजिक्स बिल्कुल सही है और आपने एनपीवी जो आपने आपके आंसर में आ रही है उसकी बेस पे डिसीजन भी दुरुस्त ले लिया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ वो जो सेल्स की जो आपने कैलकुलेशन रॉन्ग वे में की हुई है सिर्फ उसके मार्क्स कटेंगे, सिर्फ उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आप इस तरह से भी टाइम सेव कर सकते हो। अगर कोई ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए जिसमें आपको लग रहा है कि आप स्टक कर गए हो, तो वहां पे 10 मिनट जाया करने की बजाय वहां पे कोई फिगर अज्यूम करके आप अपनी कैलकुलेशन को कंटिन्यू करो उस फिगर के साथ। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़्यादा टेक्निकल कैलकुलेशन को स्कोर करने के चक्कर में हम बाज़ औक़ात ना जो ईज़ी स्कोर होता है वो हमसे फ़ॉरगो हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कैलकुलेशन में भी स्टक जहाँ पे भी कर गए हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, आगे चलते जाओ। अच्छा, नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग ईज़ी मार्क्स अवेलेबल। F9 का पेपर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो और एनी अदर पेपर ऑफ एसीसी, देयर आर these papers are always balanced. If some parts are difficult, then there definitely be some easy marks and some easy parts available. There will be easy marks available in all sections of the exam, and students who answer these questions usually perform well. टेक्निकल पॉइंट्स पे टाइम वेस्ट करना, जैसे थोड़ी पहले भी मैं बता रही थी आपको, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ईज़ी मार्क्स भी हाथ से चले जाते हैं। इसलिए हमेशा वो क्वेश्चन सेलेक्ट करो जिसकी आपकी अच्छी प्रिपरेशन थी और आपको लग रहा है कि वो ईज़ी है और आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन के कोई कुछ ना कुछ पार्ट्स और कुछ ना कुछ कैलकुलेशन ज़रूर ईज़ी होती हैं। आम तौर पे 50% तक ईज़ी मार्क्स पूरे पेपर में अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप आसानी से पास कर सकते हैं अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर लो। अगर आप एग्ज़ाम टेक्नीक से वाक़फ़ियत हासिल कर लें। अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इन चीज़ों को खुद कैटर कर लोगे एग्ज़ाम्स में। कहा जाता है कि 3 आवर्स टाइम्ड प्रैक्टिस की जाए, यानी कि एग्ज़ाम जब करीब आ जाए, तो हर रोज़ पास्ट पेपर्स उठा के या खुद एक पेपर बना के 3 आवर्स का, तो 3 घंटे साइड पे बैठ के आप पेपर सॉल्व करो जैसे मैं एग्ज़ामिनेशन कंडीशन में बैठा हूँ। उससे आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और एग्ज़ाम में कुछ अनयूजुअल फीलिंग भी नहीं आती है और आप पैनिक भी नहीं करोगे। आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी डिवाइस कर सकते हैं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पहले स्टार्ट करना है और कौन सा बाद में, अगर आपने टाइम्ड प्रैक्टिस की है 3 आवर्स वाली टाइम्ड प्रैक्टिस। बिलीव मी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक स्टूडेंट हुआ करता था, बहुत ही एवरेज सा स्टूडेंट, कभी उसने कोई प्रॉपर इतना खास कंट्रीब्यूट भी नहीं करता था क्लास में, कोई आंसर्स भी नहीं इतने बताता था। उस वक्त 6 मंथ्स के सेशंस हुआ करते थे, यानी कि दिसंबर और जून में एग्जाम्स हुआ करते थे। उस स्टूडेंट ने हमने तकरीबन उन स्टूडेंट्स को 3 वीक्स बिफोर हमने उनको फ्री कर दिया। अब उस बच्चे का मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं थी कि वो पता नहीं पास भी करता है कि नहीं करता। जब रिजल्ट आया वो बच्चा सामने आया और मैंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या बना? तो कहते हैं बड़ी आहिस्ता आवाज में कहते हैं 89। अब मुझे समझ नहीं, मैं ये समझी कि उसने कहा 49। मैंने कहा चलो जो जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, ये फेल करके। लेकिन हुआ क्या, वो 89 स्कोर के साथ पास हुआ। मैंने उससे पूछा तुमने क्या किया 89 स्कोर? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में 5 में ही बहुत बड़ा स्कोर समझा जाता है।
तो उसने कहा मैं 3 आवर्स की घर बैठ के ना प्रैक्टिस करता रहा हूँ, टाइम्ड प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हुई थी कि हो गया हुआ था कि मुझे एग्जाम में मैं बिल्कुल पैनिक नहीं किया और बड़ा अच्छा मैंने बहुत अच्छे वे में मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद से मैं खुद भी इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस हो गई। मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि 3 आवर्स की टाइम्ड प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सको, आइडेंटिफाई कर सको कौन-कौन से ईज़ी मार्क्स मैंने पहले उनके लिए कोशिश करनी है और कौन से टेक्निकल एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे थोड़ी-सी एग्ज़ाम टेक्निक लगा के आगे चलना है, ताकि मैं 3 आवर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकूँ। You must make sure that you are using your exam time effectively to identify any OTQ question in section A or B, or parts of question in section C that you can easily tackle and plan the order in which you will answer questions in the exam. Make sure that you try to answer all the OTs in an exam. तो ये तो सबसे बड़ी key to success है कि पेपर आपका मुकम्मल होना चाहिए। आमतौर पे देखा गया कि जो स्टूडेंट्स पास करते हैं उन्होंने 90% से ज़्यादा का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ। तो कोशिश कीजिए पेपर आपका मुकम्मल हो जाए। खासतौर पे ओटीक्यूज़ में कोशिश करें कि अगर कोई ओटीक्यूज़ नहीं भी समझ आ रही कि उनका क्या आंसर होगा, तो कम से कम उसको मुकम्मल ज़रूर करें। उसको वैसे ना छोड़कर, ब्लैंक मत छोड़कर आइए उसको। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रिपेयर फॉर नैरेटिव 2। प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, थ्योरी को भी तैयार किया कर। अब F9 में थ्योरी कौन-कौन सी टेस्ट होती है? आपको पता है कि F9 है क्या? डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स और डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को ही हमने इकट्ठा किया है ना यहाँ पे। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं, टेक्निक्स हैं, इन्वेंटरी के मॉडल्स हैं, टेक्निक्स हैं, सेंसिटिविटी रिस्क मेजरमेंट की और रिस्क आइडेंटिफिकेशन के मॉडल्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स और टेक्निक्स को तो हमने इकट्ठा किया। अब उसमें जो मेन टॉपिक्स जो टेस्ट होते हैं थ्योरी में, वो या तो कोई चीज़ डिस्कस करवा ले एग्जामिनर, कभी किसी के एडवांटेजेस पूछ लेता है किसी टेक्निक के, कभी किसी मॉडल के डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, कभी असम्पशंस पूछ लेगा। तो थ्योरी को इतनी मुश्किल है नहीं F9 की, आप उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि 50% पेपर नैरेटिव होगा। अब जैसे कि ये मार्क ह्यूस्टन F9 के स्पेशलिस्ट हैं, इनके कोट मैंने यहाँ पे आपकी इसके लिए डिस्कशन के लिए, आज डिस्कशन के लिए मैंने कहा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ जरा। Remember that half of the marks awarded in the exam are written. Don't just focus on the numbers in your revision, because written questions are equally as important. The exam tests the whole syllabus, particularly with written questions. So please ensure you have a good breadth of knowledge. और lack of knowledge की वजह क्या होती है? What is the reason behind lack of knowledge? आपने entire syllabus cover ही नहीं किया। आजकल जो पैटर्न चल रहा है इसमें, जैसे कि हमारी ACCA वालों के साथ काफ़ी सेमिनार्स और वर्कशॉप चलती रही थी इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से पहले। तो एक बात बार बार कहते थे, रेगुलर लेकर आना है, हमने रेगुलर लेकर आना है। क्या कि सारा स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चंस को पॉइंट आउट ना कर सकें, टॉपिक्स को पॉइंट आउट ना करें, होल सिलेबस कवर करें और पूरी ईमानदारी के साथ पूरा सिलेबस कवर करके तो पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करें। तो डेप्थ ऑफ नॉलेज और ब्रेथ ऑफ नॉलेज का होना बहुत जरूरी। और एक बात और जो स्टूडेंट्स अक्सर जो है इस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं, कैलकुलेशन वाले जो पार्ट्स होते हैं हमेशा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आपने थ्योरी प्रिपेयर की हुई है ना, तो डिस्कशन जो है या जो थ्योरी जो राइटिंग है वो आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकती है। अब 5 मार्क्स की कैलकुलेशन ठीक ठाक टाइम ले लेगी, लेकिन 5 मार्क्स की डिस्कशन 5 मिनट्स में आप कर सकते हैं। तो डिस्कशन से टाइम सेव करके आप वही टाइम जो कैलकुलेशन पे स्पेंड कर सकते हैं। In your preparation for the exam, you should practice written questions to time and submit your answer to a friend. If they understand each point you are making, then it is likely to gain a mark in the exam. If you don't understand, if they don't understand the point you are trying to make, it is unlikely to score a mark. आप वो कह रहे हैं कि आप ये प्रैक्टिस रख लें अपने फ्रेंड्स के साथ कि आप एक क्वेश्चन का आंसर करो और अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दो और वो देखें कि आपका आंसर उनकी समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपके फ्रेंड आपके पॉइंट्स को अगर समझ रहे हैं तो फिर एग्जामिनर भी समझ जाएगा, वरना फिर आपको उस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए।
एक काम ये भी किया जा सकता है कि आप एक क्वेश्चन सेलेक्ट करें, कैलकुलेशन पार्ट कर लें, उसका थ्योरेटिकल पार्ट कर लें, उसका सॉल्व प्रैक्टिस करते वक्त, और फिर देखें कि एग्जामिनर ने खुद उसका आंसर क्या प्रोड्यूस किया हुआ है। तो जो पॉइंट्स आप लैक कर रहे हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है थ्योरी को तैयार करने की। तो आपने थ्योरेटिकल पोर्शंस को भी उतना ही फोकस करना है जितना कि आप कैलकुलेशन वाले पोर्शंस की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरिंग योर आंसर। तो नरेटिव्स को कैसे आपने आंसर करना है। Answering narrative questions require a structured approach using clear paragraphs and headings where possible. Using the word item type in CB, you should jot down a very short answer plan of bullet points, and then these bullet points essentially become the headings to your answer. ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है नरेटिव्स को आंसर करने की। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 2 मिनट्स आप स्पेंड करें, 2 मिनट्स स्पेंड करें उसकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए कि मैंने इसका आंसर का क्या प्लान बनाना है। बुलेट्स की फॉर्म में उसका आंसर का प्लान बना लो। पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेनेशन, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, और मैं ये पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में बात करूंगा, और फिर ये मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करना है। वही जो आपने 2 मिनट्स स्पेंड किए हुए आंसर को प्लान करने में, वही फिर उसी को आपने बेसिकली एक्सपैंड कर देना है। वही पॉइंट्स जो है वो आप हेडिंग के तौर पर यूज कर लोगे पैराग्राफ्स बना के, उसी को थोड़ा सा एलोबरेट कर लोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, तो आपका आंसर रेडी है। वो 2 मिनट्स आंसर की प्लानिंग पे स्पेंड करना कम से कम आपके 10 मिनट्स जो है वो सेव कर सकते। ठीक है ना। सिर्फ बुलेट्स के फॉर्म में भी आंसर करोगे तो उसके भी मार्क्स नहीं मिलने, स्टेटमेंट के फॉर्म में होने चाहिए, और जहां पे पैराग्राफ रिक्वायर्ड है वहां पैराग्राफ के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। Answering numerical questions also requires a structured layout so that your calculations can be followed. Any working should be clearly labeled. Using the spreadsheet tools with its functionality can allow you to work through calculations quite quickly and save you time in the exam. तो वर्किंग क्लियरली लेबल्ड, एक तो ये कि प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए आपके आंसर का। अगर आपने कोई ऐसा आंसर करना है जिसमें कोई स्टेटमेंट वगैरह बनानी है, तो स्टेटमेंट एक प्रॉपर परफॉर्मेट के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट बनाई हुई है और उसी तरह की स्टेटमेंट दोबारा से बनानी है, जैसे कि बजट स्टेटमेंट को दी और एक्चुअल बनानी है, या एक रॉन्ग स्टेटमेंट बनी हुई है उसको आपने उसको बिल्ड करना है स्टेटमेंट को, तो परफॉर्मा वही फॉलो करोगे जो क्वेश्चन में बना। अदरवाइज आपका अपना परफॉर्मा होगा अगर क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वो एक लॉजिकल सा और एक सीक्वेंस के फॉर्म में परफॉर्मा होना चाहिए प्रॉपर, और वर्किंग जहां जहां करोगे उसका रेफरेंस दोगे, लेबल करोगे। अब तो वैसे आपको पता है कि स्प्रेडशीट्स के को आप यूज कर रहे होते हैं, उसमें आपने सेल में जब कैलकुलेशन की तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग जो है फार्मूला बार में नजर आ रही होगी, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। और स्प्रेडशीट के फंक्शंस आप जब यूज करते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपको खुद से नहीं करनी पड़ती, एक्सेल की शीट में कैलकुलेशन खुद करती चली जाती है। आपको सम का फॉर्मूला लगाना, अगर लॉग्स वाला कैलकुलेट करने उसका फॉर्मूला लगाना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, और इस तरह से सारे आपको जो शॉर्टकट्स हैं वो सारे पता होने चाहिए। स्प्रेडशीट की फंक्शंस पता होनी चाहिए। अच्छा जी, नाउ रीजंस ऑफ नॉट परफॉर्मिंग वेल। क्यों स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अब उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेबस ही पूरा कवर नहीं किया हुआ, लैक ऑफ नॉलेज। एग्जाम टेक्निक्स से वाकफियत नहीं है। अब एग्जाम टेक्निक से कैसे वाकफियत हो, एक तो ये कि टीचर्स आपको वक्तन फवक्तन गाइड करते रहते हैं। आपके पास जो एग्जाम किट्स अवेलेबल हैं उनमें एग्जामिनर्स के आंसर्स मौजूद हैं। फिर सबसे बड़ा सोर्स एग्जाम टेक्निक्स को समझने का खुद एसीसी की वेबसाइट है। प्लीज बिल्ड योर हैबिट टू फ्रीक्वेंटली विजिट एसीसी वेबसाइट। वहां पे ढेर मटेरियल मौजूद है। देयर आर टेक्निकल आर्टिकल्स जो आपको बताते हैं कि एग्जामिनर की इस वक्त किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या अप्रोच चल रही है। एग्जामिनर्स अप्रोच आर्टिकल्स आर अवेलेबल देयर इन फॉर एवरी सब्जेक्ट। में सिर्फ परफॉर्मेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही, फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर आर गाइडेंस आर्टिकल्स ऑन द एसीसी वेबसाइट। फिर एक बहुत अहम सोर्स है एग्जामिनर्स रिपोर्ट। जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हुई हो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि फ्यूचर में
what the examiner is going to test, which type of question will he ask in the coming exams. तो कम से कम प्रीवियस 2 एग्जामिनर्स रिपोर्ट आप जरूर देखें. देन रीड द माइंड ऑफ द मार्कर के नाम से एक आर्टिकल है, वो बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें उन लोगों ने एग्जामिनर ने मार्कर्स ने 2 स्क्रिप्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो मार्क करके बताएंगे कि हम किस तरह से मार्क करते हैं और हम किस पॉइंट के कितने मार्क्स देंगे. तो मार्किंग स्कीम का बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा अगर आप वो वाला आर्टिकल देख लेते हो. ठीक है ना. तो एग्जाम टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी है. नॉट मैनेजिंग द टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, स्पेंडिंग टाइम ऑन अननेसेसरी मटेरियल, इस पे हम बात कर चुके हैं. डू नॉट कवरिंग द होल सिलेबस, सिलेबस पूरा कवर नहीं किया हुआ. वर्किंग नॉट लेबल्ड प्रॉपरली और नरेटिव को प्रॉपर पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर ना करना, ये रीजंस हैं अक्सर औकात अच्छा स्कोर ना करने की या फिर खुदा ना खास्ता फेलियर की तरफ जाने. तो प्लीज इन चीजों को नोटिस कीजिए, इन चीजों को फोकस कीजिए. बिफोर द एग्जाम डे जैसे मैंने आपको भी बताया कि कम से कम ये 3 चीजों को जरूर देख लो. एग्जामिनर्स अप्रोच के आर्टिकल पढ़े हुए वेबसाइट के ऊपर, रीसेंट एग्जामिनर्स रिपोर्ट देख लें, कम से कम 2 को देख लें. उसमें जो क्वेश्चंस हाईलाइट कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स एग्जामिनर ने बताई हुई, इस दफा तो बल्कि जो एग्जामिनर की रिपोर्ट आई है वो माशाल्लाह बहुत डिटेल रिपोर्ट है, आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी. बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बड़ी अच्छी रिपोर्ट है इस दफा की. रीड द माइंड ऑफ द मार्कर आर्टिकल जरूर एक दफा देख लेना ताकि आप वो गलतियां ना कर सके, पॉसिबल पिटफॉल्स जो है उनसे आप बच सकेंगे. ठीक है. उसके बाद कंक्लूजन. अब हम अपनी जो सारी डिस्कशन है उसको सम अप करते हैं. करेक्टली इंटरप्रेट रिक्वायरमेंट्स, तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. एक्टिवली रीड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, हाईलाइटिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट फॉर ईच पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट. तो हाईलाइट करते जाएं, हाईलाइटर आपको पता अवेलेबल होता है. use that information to perform calculations that are carefully structured and clearly set out, with all workings shown in an easy to follow layout. तो परफॉर्मा अच्छा बनाना, लेआउट सही बनाना, ये भी आपको स्कोर दिलवा जाएगा. अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एग्जामिनर ने रिपोर्ट डिमांड की हुई आपसे, तो रिपोर्ट के परफॉर्मे में आंसर होना आपको 1 to 2 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कर जाएगा. Write accurately and coherently using simple English rather than long rambling sentences which have no structure and no real content. तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप एक एवरेज से ज्यादा बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकोगे और खुदा ना खास्ता फेलियर से कम पास की तरफ आ जाओगे. तो इसके साथ ही हम आज का अपना सेशन एंड करते हैं. बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को. एग्जाम बिल्कुल करीब है आपके. अल्लाह आप सबको बहुत सारी ढेरों कामयाबियों से नवाजे और आपको नेक मकासद में अल्लाह को कामयाबियां दे. अल्लाह हाफिज.